Hello everyone, welcome back to the second channel. Today we'll discuss about career options after 12th. अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया तो अभी फ्यूचर बनाने के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आपको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है या और कुछ करना है, क्या ऑप्शंस है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट इज अवेलेबल आफ्टर 12th. So we'll discuss all this thing in this video. देखिए जब 12th खत्म हो जाता है, when we finished our 12th in science, so basically three things comes to our mind. Or if you ask anybody, they'll suggest either engineering or medical or simple graduation in science, basic science course. So even if you want to do engineering or medical or simple basic science, still there is many options. You have to choose the best institute so that you can make your future bright. So all those things, whatever the entrance examination, which are the best institutes available for different course. So we'll discuss in this video. So please watch this video up to the end. So first of all, there is two options. First one is joint entrance examination. In each and every state, they are conducting differently on their states. Uh, by using your JE score or joint entrance examination score of your state board, then you can there is some opportunity like you can do like integrated MBA course or many things are there like that. If you want to make your career in basic science, there is an exam called NIST. First I will discuss overall whatever the entrance examination available, then we'll go one by one and we'll discuss the eligibility criteria and other things. Okay, even for best engineering means if you want to do engineering in best colleges or institutes or even in IIT like NIT or IIT, you can go for JEE Main, JEE Advanced. Then there is some architecture courses there. If you want to make your future in architecture, then there is one entrance examination is called NIASA, and other institute is there MRNAT. You can appear this entrance examination for various courses. Next one is if you want to make your career in medical, there is examination called NEET. You can go for NEET entrance examination. And if you want to make career in law, then you can go for CL CLAT or CLAT entrance examination. Beside all this entrance examination, there are so many other options is also there. Many good universities they are conducting their separate entrance examination. Okay, so all these things are not included here in this part. I will discuss one by one. I'll tell you whatever the eligibility criteria, how you can apply for all these entrance examination. So please watch this video up to the end, like the video, share and subscribe the channel so that you will get all the updates. If what is the release date of the form for any entrance examination, what is the end date, how to apply the form, every details you'll get through this channel. So please subscribe and share with your friends. Next important examination is Joint Entrance Examination (MEN), JEE-MEN. This is conducted national wise, and this is conducted by the National Testing Agency. So you can appear for JEE-MEN 4 times in a year. एक साल में 4 बार आप ट्राई कर सकते हैं. देखिए पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. You should qualified 10+2 in science or other equivalent examination as listed by NTA. जो NTA साइट में देख लेना, जो भी लिस्टेड होगा उसके हिसाब से आपको क्वालिफाई करना चाहिए. एज लिमिट देयर इज नो एज लिमिट. और आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए. फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए. आपका जो 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए. 4 बार एक साल में ट्राई कर सकते हैं. In this 2021, because of the pandemic, now there is one rule was there, like you should have 75% mark in your
10+2, and that part is waived. 75% mark criteria have been waived off for the academic year 2021-22. So this is good news for all. अच्छा, कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है? If you qualify NTA, if you qualify JEE Main, then you can get admission in different NIT, like National Institute of Technology, NITs. That will be depends on the rank of your JEE Main. Then you can also apply for IIIT, Indian Institute of Information Technology. और बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, IIIT भुवनेश्वर है, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये सारे इंस्टीट्यूट में भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जेईई मेन क्वालिफाई करते हैं तो ये सारे इंस्टीट्यूट में आप ट्राई कर। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज जेईई एडवांस और जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस। देखिए, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर अच्छा है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि कितना कट ऑफ है, कट ऑफ की लिमिट के अंदर आप है तो फिर जेईई एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। It is conducted by one of the 7 zonal IITs like IIT Roorkee, IIT Kharagpur, IIT Delhi, IIT Kanpur, IIT Bombay, IIT Madras and IIT Guwahati। ये जो 7 IIT है, इसमें से कोई ना कोई IIT कंडक्ट करता है with the help of और with the guidance of joint admission board। तो सारे IIT एक साल में एक बार होता है। देखिए, ये जो 7 IIT है, ये सारे कोई ना कोई IIT जेईई एडवांस कंडक्ट करता है with the help of joint admission board। इफ यू गॉट गुड रैंक, यदि आपका रैंक अच्छा मिलेगा जेईई एडवांस में, तो फिर आप कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? अब तो सबसे पहला ऑप्शन तो आप आईआईटी में ले सकते हैं, सेकंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी में ले सकते हैं, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में ले सकते हैं, और बहुत सारा आइजर है, जैसे कि आइजर बरहमपुर है, आइजर भोपाल है, तो कहीं ना कहीं पे आप आइजर में भी एडमिशन ले सकते हैं। इवन यू कैन गॉट एडमिशन इन आईआईसी बेंगलोर, आप आईआईसी बेंगलोर में भी एडमिशन ले सकते हैं इफ यू गॉट गुड रैंक। एंड ऑल दीज आईआईटीज, आईआईएससी, आईआईपी, आइजर्स will offer you the course according to your rank। जैसा रैंक होगा उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं आईआईटी में या आइजर में, नहीं तो आईआईपी में कहीं ना कहीं पे सीट मिलेगा। Even if you want to do course in foreign like in University of Cambridge and the National University of Singapore, you can do admission through the rank of this JEE Advance। तो फिर एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? देखिए, एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए कि आपका जो 10+2 में 75% से ज्यादा मार्क होना चाहिए और जनरल कैटेगरी, कोई कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपका 65% मार्क होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 75% मार्क एंड अदर कैटेगरी के लिए 65% मार्क आपका 10+2 में होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपका एज 25 से कम होना चाहिए। आपका जो एज है वो 25 से नीचे होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है या ओबीसी है तो फिर आपका कोई एज रिलैक्सेशन होगा वहां पे। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि आप 2 कंसेक्यूटिव ईयर में 2 बार एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं जेईई एडवांस। और नेक्स्ट है कि आपका कोई कहीं पे एडमिशन नहीं होना चाहिए कि अगर आप कहीं आईआईटी में ऑलरेडी गॉट एडमिशन, अगेन इफ यू वांट टू ट्राई, आपका एडमिशन हो चुका है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एमआरएनएटी, मानव रचना नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वो फरीदाबाद हरियाणा में है। Manav Rachna National Aptitude Test, popularly known as MRNAT, is conducted by Manav Rachna Group of Institutions for admission to the undergraduate and postgraduate courses offered at Manav Rachna University and Manav Rachna International Institute of Research and Science। तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए पहले MRNAT एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहिए। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपका 10+2 में 60% मार्क होना चाहिए। जो आपका कोर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप एमआरएनएटी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, तो फिर आप बहुत सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज और साइंस कोर्सेज यू कैन डू देयर इन मानव रचना यूनिवर्सिटी और मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस एंड रिसर्च then you can try NIST examination, National Eligibility Screening Test।
जो कि हमारा नाइजर, अगर आपको निस्ट क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको एडमिशन नाइजर में मिलेगा। तो क्या होना चाहिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एंट्रेंस देने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? तो पहले तो 10+2 में आपका 60% मार्क होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। अगर आप SC ST या PW कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपका 55% मार्क होना चाहिए मिनिमम। इसमें 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड, जो कि 30 मार्क आएगा आपको क्वेश्चन। और जो बाकी 4 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो सेक्शन 1 में जनरल एप्टीट्यूड में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी जो 4 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, बाकी चारों में आपका नेगेटिव मार्किंग है। If you got good rank in NIST entrance examination, then you can get admission in Nigel Bhubaneswar, National Institute of Science and Research, Bhubaneswar. If you are not interested in basic science or in traditional engineering course, then you can go for architecture. तो आपको आर्किटेक्चर करने के लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं NATA, नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। नाटा को कौन कंडक्ट करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन आर्किटेक्चर कंडक्ट करता है। तो आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट। इफ यू आर डूइंग डिप्लोमा, मैथमेटिक्स शुड बी एज कंपलसरी कोर्स इन योर डिप्लोमा। आपका डिप्लोमा में मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप आर्किटेक्चर कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि KIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है और IIT है जहाँ पे आप आर्किटेक्चर कोर्स कर सकते हैं। If your dream to become a doctor, then you can try for NEET exam or AIMS exam, National Eligibility Cum Entrance Test और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। देखिए नीट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? 10+2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी along with इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपका एज in between 17 to 31 होना चाहिए। Maybe there is some age relaxation for different categories. आपका मार्क कितना होना चाहिए 10+2 में? फॉर जनरल 50% होना चाहिए, फॉर SC ST OBC 40% होना चाहिए। If you are coming under PWD, you should have 45% mark in your 10+2 exam. If you are qualifying NEET or AIMS, according to your rank, you will get the different for MBBS courses. देखिए एम्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका 10+2 में क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट। और उसके बाद है कि आपका एज मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए। और आपका जो 10+2 में मार्क और जनरल कैटेगरी 60% मार्क होना चाहिए और अदर कैटेगरी 50% मार्क होना चाहिए। दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एम्स। देखिए अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग या साइंस में नहीं है, इफ यू वांट टू परस्यू लॉ, अगर लॉ करना है आपको, तो फिर आप कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका फ्यूचर डिजाइन में बनाना है तो फिर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, यू कैन ट्राई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इफ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर इन फैशन टेक्नोलॉजी, then you can go for NIFT, National Institute of Fashion Technology एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, डेट ऑफ एंड एप्लीकेशन डेट के बारे में जानना है, तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट है जो अपना जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेपरेट करते हैं। तो सारे चीज के बारे में, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन या डेट ऑफ एप्लीकेशन, हाउ टू फिल एप्लीकेशन, to know about anything or everything about the your career opportunity, you can join our channel. You can subscribe and share with your friends, and don't forget to like the channel. Thank you very much.